Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great, and today we are here back with the part 3rd of the chapter Justice. In the last part we have discussed the meaning of proportionate justice, and we have understood that how can we ensure justice to each and every person in the society. But there was a question, and the question was that if we are treating every person in an equal manner, so can we say it is justice? Because we have already understood that there are some natural inequalities also, right? So if we treat every person equally, so can it be justice? So other conception is that those people who are not able to develop themselves or who are having some kind of lack on the natural basis, so we will have to provide them something extra. We will have to identify their needs, that which kind of requirements they are having and what the state can do for the fulfillment of those needs, right? So today the topic that we are going to discuss, that is recognition of special needs. It means how can you ensure or how can you identify that this person should be given some extra privilege, right? For example, in the last chapters we have understood and we have studied the example that suppose any aged person is there, so that person can be given preferences on the ticket counters, right? And we will not say it inequality, we will say it justice, because that person is not that much capable to stand for that long time period, right? So today we are going to discuss the same thing, that how we will recognize the special needs of the people. So let us start today's topic. Our third principle of justice, which we recognize, is for a society to take into account special needs of the people. आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको रिकॉग्नाइज करना है, आपको आइडेंटिफाई करनी है स्पेशल नीड्स लोगों की, और वो कब? वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड्स और ड्यूटीज. जब आप लोगों को रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जब आप ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल आर एजुकेटेड, यू ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, राइट? आप लोगों ने सुना भी होगा कि जॉब्स में रिजर्वेशन मिलती है, एंड मे बी यू एंड योर पेरेंट्स मस्ट बी सेइंग कि जो रिजर्वेशन है दैट इज नॉट बेनिफिशियल, है ना? लेकिन अगर हम लोगों ने वो रिजर्वेशन की है तो देयर इज सम बैकग्राउंड ऑफ दैट. उन लोगों की वो नीड्स हैं जो फुलफिल करनी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, जब हम अपने स्टेट में, अपनी सोसाइटी में रिवॉर्ड्स या ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों में, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी लोगों की स्पेशल नीड्स, कि उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है और उनको क्या प्रोवाइड करवाया जाए, सो दैट दे कैन ऑल्सो बी द एक्टिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी, है ना? सो दैट वी कैन कंसीडर इन दिस मैनर वी ट्राई टू इंश्योर जस्टिस एंड वी ट्राई टू प्रमोट जस्टिस. I think now it's clear. This would be considered a way of promoting social justice, और ये सबसे अच्छा मैनर है सोशल जस्टिस को इंश्योर करने का. अब सोचो, अगर दो बच्चे हैं, one child that is fully healthy, right? There is no any problem with that. और एक second child है जिसको आपने क्या किया है, that person is lame, that child is lame, he is not able to walk properly, और आपने ना रेस करवा दी, और उस रेस में आपने क्या कराया, you have given them equal time period, कि आपको equal time period में ना इस पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करना है, एंड आफ्टर दैट वी विल बी डिक्लेयरिंग हु इज विनर. क्या आपको लगेगा ये जस्टिस है? नो वन विल बी सेइंग इट. क्यों? क्योंकि एक बच्चा ऑलरेडी, उसकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं, आपको पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहले उसको उस इक्वालिटी की कैटेगरी में तो लेके आओ ताकि वो उसमें एटलीस्ट फाइट कर सके. And that's why we need some special, we are having requirement of recognition of special needs. समझ आया? It means if we will provide justice in that manner, of course we will be able to ensure and we will be able to promote social justice. I think clear? In terms of their basic status and rights as member of the society, justice may require that people be treated equally. अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको क्या लगता है, दैट द पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली?
हम लोग यही सोचते हैं ना, दैट एवरी पर्सन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, एवरी पर्सन शुड बी treated equally. All these things we are able to listen and we also think it is just, right? But even non-discrimination between people and rewarding them proportionately to their efforts might not be enough to ensure that people enjoy equality in their aspects of their lives in society. लेकिन देखो, जब आपको क्या लगता है, but even non-discrimination between people, लोगों के बीच में अगर आप डिस्क्रिमिनेशन ना करो, and rewarding them proportionately, आप उनको उनके प्रोपोर्शन में, मतलब आपने क्या पढ़ा था प्रोपोर्शनेट जस्टिस का मतलब कि आप लोगों को रिवॉर्ड किस बेस पे देते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो उन लोगों ने टास्क क्या किया है, उनके टास्क के करने में, उनके वर्क के करने में कितना डेंजर इन्वॉल्व है, आप उसके बाद सारा क्राइटेरिया चेक करके आप उनको रिवॉर्ड ग्रांट करते हो, राइट? यहां पे आप लोग क्या बोल रहे हो कि जब आप लोगों को रिवॉर्ड करते हो अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शनैलिटी टू देयर एफर्ट्स माइट नॉट बी इनफ टू इंश्योर दैट पीपल एंजॉय इक्वालिटी. अगर आप इतना भी करते हो ना कि आप सोच रहे हो कि आपने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया. अब देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि दो बच्चों को आपको ना रेस में दौड़ाना है, राइट? आपके अकॉर्डिंग तो आपने जस्टिस कर दिया ना, आपने दोनों को इक्वल टाइम पीरियड दे दिया. गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी वो जस्टिस नहीं हुआ, है ना? आपको अलोंग विद द प्रोपोर्शनैलिटी, अलोंग विद द प्रोपोर्शनेट जस्टिस एंड अलोंग विद द कंसेप्ट ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन हमें कुछ और भी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. वो इनफ नहीं है, दैट इज नॉट इनफ टू इंश्योर जस्टिस टू द पीपल. और वो उसके लिए भी इनफ नहीं है कि आप लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करवाते हो. समझ आया? इन अदर एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स, ऑफ देयर लाइव्स इन सोसाइटी, नॉट दैट दिस सोसाइटी एज अ होल इज जस्ट. और इसको आप किसी भी मैनर में, ना तो उनकी लाइफ के अकॉर्डिंग, ना आप सोसाइटी में, आप कैसे भी उसको जस्ट कंसीडर कर ही नहीं सकते. यू विल हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा टू प्रोवाइड जस्टिस, टू इंश्योर जस्टिस टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी. समझ आया? इट मीन्स क्या मतलब है रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स का? सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि आपने सबको इक्वल कर दिया, आपने प्रोपोर्शनेट जस्टिस इंश्योर कर दिया, आपने लोगों को रिवॉर्ड दिए उनके टास्क के अकॉर्डिंग, आपने सैलरीज वेजेस दे दी लोगों के टास्क के अकॉर्डिंग. दैट्स नॉट जस्टिस. यू विल हैव टू चेक समथिंग एक्स्ट्रा, राइट? और वो समथिंग एक्स्ट्रा दैट विल इंश्योर जस्टिस. जब आप एटलीस्ट लोगों के माइंड में सिक्योरिटी लेके आओगे दैट यस वी ऑल आर इक्वल ना, अब जो हमें मिल रहा है वी आर गेटिंग अकॉर्डिंग टू आवर पोटेंशियल, है ना, वो होगा आपका जस्टिस. क्लियर? The principle of taking account of the special needs of people does not necessarily contradict the principle of equal treatment. अब देखो, आप क्या करोगे, हमें फिर ये लगेगा कि अगर हम कुछ लोगों की स्पेशल नीड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर ये तो एक प्रिंसिपल जो हम बोलते हैं ना कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसके अगेंस्ट में हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? एक तरफ आपने बोला दैट एवरी पर्सन इज इक्वल, है ना, बिकॉज इफ यू वांट टू इंश्योर जस्टिस तो आपको सबको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा. बट दूसरी तरफ आपने क्या बोल दिया, दैट यू विल हैव टू गिव रिकॉग्निशन ऑफ द स्पेशल नीड्स, तो फिर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए. बट इन एक्चुअली दीज आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी. गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि आप उन लोगों को पहले उस इक्वल क्राइटेरिया में तो लेके आओ सो दैट दे कैन ऑल्सो फाइट. समझ आया? अब देखो, रिजर्वेशन क्यों किया था? द बेसिक intention and the basic goal behind reservation was that कि उन लोगों को पहले उस क्राइटेरिया में तो लेके आओ कि वो उन लोगों के सामने फाइट कर सकते हैं, because they were repressed for long time period और उनका माइंडसेट उसके अकॉर्डिंग ही चला हुआ था. they were not able to represent themselves. इसीलिए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया रिजर्वेशन. इसीलिए अगर आपको कोई बोलता है that the idea of equality and the idea of special needs, these are contradictory to each other, so you will have to say no, these are not contradictory. Special needs is a rational method to ensure justice to that person who is standing at the last also. आपको उसको भी तो जस्टिस इंश्योर करना है ना, जो बिल्कुल लास्ट में है लैडर के. क्लियर? अब देखो क्या है, contradict the principle of equal treatment so much as extend it because the principle of treating equally could imply that people who are not equal in certain important respect could be treated differently. हमें देखने में तो ऐसा ही लग रहा है ना
कि जो लोग इक्वल नहीं है उनको आप डिफरेंटली ट्रीट करोगे, तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए एक दूसरे के. बट इन एक्चुअल द रियलिटी आई हैव टोल्ड यू दिस इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर. These two concepts are not contradictory to each other. पहले आप इक्वल करोगे, फर्स्टली यू विल इंश्योर इक्वालिटी, तब तो आप उनके साथ इक्वालिटी के साथ ट्रीटमेंट करोगे ना. पहले आप इक्वल तो लेके आओ उन लोगों को. एंड दैट्स व्हाई फॉर दैट इक्वालिटी वी विल हैव टू रिकॉग्नाइज द स्पेशल नीड्स ऑफ द पीपल. आई होप यहां तक अब कोई डाउट नहीं है. इन सिंपल टर्म्स इफ वी सम अप होल ऑफ दिस पैराग्राफ व्हाट इज मेंशन्ड हियर कि पहले आपको लोगों की स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज करना है. स्पेशल नीड को रिकॉग्नाइज करना इन द सेंस कि आपको जस्ट ये नहीं देखना कि आपको इक्वालिटी इंश्योर करनी है, बट उस इक्वालिटी से पहले की जो सिचुएशन है कि आप जब इक्वालिटी के साथ लोगों को ट्रीट कर रहे हो, जिन लोगों को ट्रीट करना चाह रहे हो, क्या वो ऑलरेडी इक्वल हैं? एंड इफ दे आर इक्वल देन वी कैन से इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा था. हमने बोला था कि हम कंट्री के प्रेसिडेंट की और एक सिंपल लेबर क्लास की जो privileges हैं we can't do them same because one person is representing the whole nation, so we can't do that, right? But for being the part of the country हमने सभी को right to vote equality के साथ provide किया है. Getting my point? लेकिन as I told you कुछ natural inequalities भी होती हैं, तो natural inequalities को आपको check करना है. Along with that कुछ society कुछ ऐसी inequalities भी हैं which are created by the society. बट इवन दैन वो लोगों के ऊपर हावी हो जाती हैं. वी हैव सीन द एग्जाम्पल ऑफ कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी इन आवर सोसाइटी. तो अगर आप उन चीजों को रिकॉग्नाइज करते हो तो फर्स्टली व्हाट यू विल हैव टू डू, वी विल हैव टू रिकॉग्नाइज द नीड्स ऑफ द पीपल. आपको पहले उन सभी लोगों को उस इक्वल कैटेगरी में लेके आना है. देन वी विल बी इंश्योरिंग एंड वी विल से दैम, वी विल प्रोवाइड देम जस्टिस अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शनेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी. Now I hope it's clear to all of you, right? अब देखो अगर आपको clear है तो I think you will be able to answer these things. Let us think what is given here. Examine the following situations and discuss whether they are just. आपको identify करना है क्या ये actual में सही है या नहीं है. In each case discuss the principle of justice that might be used in defense of your arguments. आपको आर्ग्यूमेंट देने हैं और आपको कुछ एक वो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस भी बताना है जिसको आप यूज कर सकते हो अपने आर्ग्यूमेंट्स को डिफेंस में, अपने आर्ग्यूमेंट्स के डिफेंस में. क्लियर? फर्स्ट इज सुरेश, a visually impaired student gets 3 hours and 30 minutes to finish his mathematics paper while the rest of the class gets over 3 hours. अब देखो इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट, मतलब वो बच्चा उसको देखने में कुछ प्रॉब्लम है. तो अगर उसको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं बिकॉज ही माइट बी गेटिंग सम हेल्प, राइट, टू कंप्लीट हिज पेपर, तो वो उसको बताएगा, तब वो हेल्पर उसको उसके आंसर्स को आंसर शीट्स में फ्रेम करेगा. तो क्या आपको लग रहा है कि ये जस्टिस है? ऑफ कोर्स इट इज जस्टिस, क्योंकि आपको दिख रहा है दिस इज नेचुरल इनइक्वालिटी, है ना. आपने उन सभी को इक्वल करने से पहले उसको इक्वल कैटेगरी में लेके तो आना है ना. हमने उसको एजुकेशन दी, दैट इज वेरी गुड, बट इवन देन आप उसको जब एग्जामिन करने वाले हो आप उस बच्चे को, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसके लिए यूज करने पड़ेंगे. एंड इफ द चाइल्ड इज गेटिंग 30 मिनट्स एक्स्ट्रा, सो वी विल से इट इज रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स. समझ आया? फाइन. वी विल नॉट से कि इट इज इनजस्टिस. Second, Geeta walks with a limp, मतलब she is not able to walk properly. The teacher decided to give her also 3 hours and 30 minutes to finish her mathematics paper. वो भी चलने फिरने में, मतलब वो चल नहीं पाती है प्रॉपरली, तो क्या आपको लगता है कि उसको भी 30 मिनट्स लेट मिलनी चाहिए? देखो ये बच्चा जो विजुअली इंपेयर्ड है ना, ये हालांकि अगर वो लेट पहुंचती है बिकॉज शी इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम गिवन है, राइट, बट शी इज एबल टू राइट हर पेपर ऑन बाय ओन, है ना. We can give some extra time for her also, but according to the situation, because she is able to write along with her hands only. उसको किसी हेल्पर की नीड नहीं है, राइट. सो यू कैन से कि यहाँ पर उस स्पेशल नीड को रिकॉग्नाइज करना इतना रिक्वायर्ड नहीं है. हाँ, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको एग्जामिनेशन हॉल में टाइम से अगर वो पहुंच जाती है, देन वी कैन गिव हर इक्वल टाइम. 5 to 10 minutes extra we can give her, but not like that student who is visually impaired.
क्योंकि वो बच्चा खुद लिख भी नहीं पाएगा अगर वो देख भी नहीं पा रहा है, बट शी इज वॉकिंग विद द लिम्ब, मतलब उसको चलने में प्रॉब्लम है, शी इज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम इन हर हैंड्स. क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट? Third, our teacher gives grace marks to the weaker student in the class to boost their moral. अब आपको क्या लगता है कि स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज करना है? क्योंकि अगर देखो हर बार आप वीकर स्टूडेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ग्रेस मार्क्स देते रहोगे तो क्या उनका मोरल डाउन होगा और विल दे बी हैबिचुअल ऑफ दैट? कहीं ना कहीं वो उसके हैबिचुअल बन जाएंगे. व्हाट कैन वी डू? जो वीकर स्टूडेंट्स हैं, rather than giving them extra marks or grace marks, we can give them remedial classes, right? आप उनको रेमेडियल क्लासेस दे सकते हो और उन रेमेडियल क्लासेस के थ्रू आप उनका नॉलेज इनहेंस कर सकते हो. वी कैन इनहेंस देयर क्वालिटी, कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन. तब आपको उनको एक्स्ट्रा मार्क्स देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी. अगर ऐसे एक्स्ट्रा मार्क्स देने शुरू कर दिए, देन द स्टूडेंट्स हु आर रीडिंग प्रॉपरली, व्हाट इज द फॉल्ट दे आर डूइंग? उनकी तो कोई मिस्टेक नहीं है इफ दे आर रीडिंग प्रॉपरली. तो इन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स की बजाय, ग्रेस मार्क्स की बजाय हम रेमेडियल क्लासेस का सजेशन ज्यादा बेनिफिशियल कंसीडर कर सकते हैं, राइट? अब एक है, our professor distributes different question paper to different students based on her evaluation of their capabilities. ये हो सकता है कहीं ना कहीं, मान लिया कोई बच्चा है, कोई स्पेशल चाइल्ड है किसी क्लास में, है ना, तो आप उसको और बच्चों के जैसे इक्वल क्वेश्चन पेपर यू कांट गिव बिकॉज दैट चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू डू दैट, राइट? क्योंकि अगर आपने उन बच्चों का कैलिबर देख लिया, क्वालिटीज देख ली, उसके बाद बच्चों को डिफरेंट क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, देन वी कैन से कि यस इट इज जस्टिस एंड इट इज द रिकॉग्निशन ऑफ द स्पेशल नीड्स. फाइन. And the last is there is proposal to reserve 33% of the seats in the parliament for women. अब तो हालांकि women को रिजर्वेशन मिल गई है पार्लियामेंट में, तो प्रपोजल है. So can we say? Yes, we can say. Why we can say? क्योंकि जब तक women policy making में participate नहीं करेंगी तो they will not be able to involve in the actual policy formation of the country. क्योंकि जब तक उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, who will be raising the voice for them? So that's why we can say that yes, if women are having 33% reservation in the parliament especially, so there will be more possibility that women will be getting more representation also, and they will be able to represent their interest. So yes, we can say we can do that. Because from long time period they are considered just as a secondary part only, because we are living in male dominant society. So to break down all those kind of, you can say, conservative mindset, we can give reservation to women, and already it has been given. Fine, I think now all of the things are clear to all of you. Next is people with special needs or disabilities could be considered unequal in some particular respect and deserving of special help. अब देखो people को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कुछ मान लिया कोई ऐसा बच्चा जिसको किसी स्पेशल नीड की रिक्वायरमेंट है, कोई बच्चा जो डिसेबल है, जैसे हमने पढ़ा कि वो बच्चा विजुअली इंपेयर्ड है, वन गर्ल इज देयर दैट इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, है ना, तो उनको आप yes we can say कि yes they are naturally unequal and we can give some kind of special help because they deserve that. Along with we can give them respect also, and it should be given, right? But it is not always easy to get agreement regarding which inequalities of people should be recognized for providing them special help. लेकिन हमेशा easy नहीं है, है ना? इट्स नॉट एवरी टाइम इजी कि आप लोगों की स्पेशल नीड्स को आइडेंटिफाई करो, उसमें भी कॉन्ट्राडिक्शंस हो सकते हैं. अब देखो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अगर कोई बच्चा विजुअली इंपेयर्ड है तो आप उसको 30 मिनट्स दे सकते हो, बट द गर्ल शी वॉज नॉट एबल टू वॉक, लेकिन पेपर में वॉक तो करना नहीं था, शी विल हैव टू सिट ओनली एंड शी विल बी राइटिंग विद हर हैंड्स ओनली, राइट? सो इट कैन बी अ कॉन्ट्राडिक्शन ना, कि वो बच्चा भी फिजिकली डिसेबल है और वो गर्ल भी फिजिकली डिसेबल है, तो उस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया जाएगा, एंड व्हाई द गर्ल विल नॉट बी एबल टू गेट एक्स्ट्रा टाइम, राइट? सो इट्स नॉट इजी, बट वी विल हैव टू बी very you can say very conscious when we are giving this kind of special recognition, right? And in society of course it can create problems. Physical disabilities
age, or lack of access to good education or health care are some of the factors which are considered ground for special treatment in many countries. अब बहुत सारी कंट्रीज में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? अब बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि जब हम देखते हैं ना कि फिजिकली डिसेबल्ड बच्चा है ना, उनकी लैक है कहीं ना कहीं, दे आर नॉट एबल टू गेट पब्लिक फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, तो उनको हम कई कंट्रीज में रिकॉग्नाइज करते हैं कि अगर किसी के पास ये नहीं है, मतलब अगर किसी के पास एक्सेस नहीं है रिसोर्सेज तक, अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंसीडर, और उन लोगों को प्रोवाइड की जा सकती है स्पेशल हेल्प, राइट? It is believed that if people who enjoy a very different standard of living and opportunities are treated equally in all respect with those who have been deprived of even the basic minimum needs to live a healthy and productive life. और बिल्कुल हो सकता है, और ये बिलीव है एंड इट इज करेक्ट ऑल्सो, कि जो लोग जिनके पास सब कुछ है, एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड, दे आर हैविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, they are having opportunities, they are getting all of the basic amenities to fulfill their dreams, to achieve their dreams, so you can treat them equally, right? And if some people are there who are not even able to fulfill their basic needs, so can you say कि आप उन दोनों को equally treat करोगे? It's not possible. एंड दैट इज द रीजन कि हमने कहीं ना कहीं एससी कैटेगरीज, ओबीसी कैटेगरीज को हम लोगों ने कहीं ना कहीं क्या दिया हुआ है, वी हैव गिवन देम रिजर्वेशन, बिकॉज वी हैव सीन कि कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो अपनी नीड्स को खुद ब खुद फुलफिल कर सकती हैं, बट सम आर देयर हु आर हैविंग नीड ऑफ सम स्पेशल हेल्प टिल नाउ ऑल्सो, राइट? सो वी कैन बी जस्ट इन दैट मैनर ऑल्सो, राइट? The result is likely to be an unequal society. अब लेकिन कुछ लोग तो क्या बोलेंगे, some people will say कि आपने, अब suppose कुछ लोग हैं, those who are having basic facilities, they are having good life standard, कुछ लोग हैं जिनको आप बोल रहे हो कि इनको स्पेशल नीड्स के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए, बट कुछ लोग क्या बोलेंगे, those people who are having basic amenities, they have earned it, उन्होंने अपनी एफर्ट से उसको अर्न किया है, एंड प्रॉब्लम क्या होगी, देन पीपल विल बी सेइंग इट इज नॉट द जस्ट सोसाइटी, ये तो इक्वल सोसाइटी है ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ आपको इक्वालिटी एस्टैब्लिश करनी है, बट उस इक्वालिटी के लिए हम पहले इनइक्वालिटी के पाथ से जाके कहीं ना कहीं इक्वालिटी इंश्योर करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज द रीजन कि कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, द रिजल्ट इज लाइकली टू बी एन अनइक्वल सोसाइटी। ऐसे में सोसाइटी कैसी बनेगी, अनइक्वल सोसाइटी, दैट विल नॉट बी बेस्ड ऑन कंप्लीट इक्वालिटी, राइट? नॉट एन इगलिटेरियन एंड जस्ट वन। इगलिटेरियन क्या होता है? इगलिटेरियन एक ऐसी सोसाइटी होती है जो कंप्लीटली आपकी बेस्ड होती है इक्वालिटी के ऊपर, दैट इज इगलिटेरियन सोसाइटी। तो ऐसी सोसाइटी को आप इगलिटेरियन सोसाइटी कंसीडर नहीं कर सकते, है ना? और ऐसी सोसाइटी को आप जस्ट सोसाइटी भी नहीं बना सकते हो। In our country, lack of access to good education or health care and other such facilities is often found combined with social discrimination. अब देखो हमारी, अब अलग अलग कंट्री का ना अलग अलग सिनेरियो हो सकता है। अब अपनी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में क्या है, लैक ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन, कि अच्छी एजुकेशन लोगों के पास नहीं है, दे आर नॉट हैविंग गुड हेल्थ केयर ऑल्सो, and such facilities is often found combined with social discrimination on ground of caste. इंडिया में आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैसे देखने को मिलती है कि जो हमारा कहीं ना कहीं जो कास्ट सिस्टम चलता आ रहा है ना, जो कुछ लोग खुद को सुपीरियर मानते हैं और जिन्होंने कुछ लोगों को उस लैडर पे बिल्कुल बॉटम पे रख दिया, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव गिवन द रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्योंकि हमारी कंट्री में एजुकेशन तक एक्सेस, हमारी कंट्री में बेसिक फैसिलिटीज तक एक्सेस है, दैट वाज बेस्ड अपॉन द कास्ट, राइट? अगर आप अपनी हिस्ट्री को उठा के देखोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर अलाउड फॉर रिजर्वेशन, एंड दैट इज द रीजन कि हम लोगों ने क्या कर दिया, वी हैव गिवन द रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स एंड कोर्ट्स फॉर एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव डन। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, हमने रिजर्वेशन इंश्योर की है।
हर जगह पे, नॉट ओनली इन द गवर्नमेंटल जॉब्स ऑल्सो, बट अगर कहीं पे एडमिशन हो रहा है तो इवन देन वी हैव गिवन द रिजर्वेशन टू द SC कम्युनिटी एंड द ST कम्युनिटीज ऑल्सो, एंड वी विल से इट इज जस्ट ऑल्सो, राइट? नाउ आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने इसको जस्ट क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि आपको उनकी स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज करना है। पहले ये तो इंश्योर करो कि क्या उन लोगों के पास वो बेसिक नीड्स हैं या नहीं है, वहां तक उनकी एक्सेस है या नहीं है। आफ्टर दैट वी कैन से ना, आफ्टर दैट वी कैन प्रोवाइड दैम सम काइंड ऑफ थिंग्स। आप उनको इक्वल कहीं ना कहीं फाइट करवा सकते हो। क्लियर? आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। अब देखो, हियर इज अ डिस्कशन। यहाँ पे बच्चा क्या कह रहा है, व्हाई इज द स्टैच्यू ऑफ जस्टिस ब्लाइंड फोल्डेड? आप लोगों ने भी देखा होगा, जो हमारी कंट्री में जब सत्यमेव जयते लिखा होता है तो हाथ में एक तराजू लिए होता है, राइट? जो स्टैच्यू ऑफ जस्टिस है, और उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है। इसका यह मतलब नहीं होता कि हमारा कानून अंधा है, राइट? नाउ व्हाट इज द गर्ल सेइंग? शी इज सेइंग शी इज ब्लाइंड फोल्डेड बिकॉज शी नीड्स टू बी इम्पार्शियल। वो क्या कह रही है कि वो क्यों ब्लाइंड फोल्डेड है, क्यों पट्टी बंधी हुई है? ताकि वो ये ना देखे कि उसके सामने कौन है, सो दैट जस्टिस कैन बी गिवन कंप्लीटली इम्पार्शियल, ताकि उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। बट बॉय क्या कह रहा है, ऑफ कोर्स शी नीड टू बी इम्पार्शियल, बट आई वंडर हाउ देन डज शी सी द स्पेशल नीड्स ऑफ द पीपल। लेकिन फिर ये भी बोल रहे कि अगर आप ऐसा देख रहे हो कि चलो मान लिया आप ये बोल रहे हो कि आपको स्पेशल, आपको क्या करना है, इम्पार्शियल बनना है, लेकिन फिर ये बोल रहे हैं कि अगर उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है तो फिर वो कैसे देख पाएगी कि किन लोगों को स्पेशल नीड्स की रिक्वायरमेंट है? इज इट अ क्वेश्चन ना? एंड दैट्स व्हाई we will have to understand the structure of our society, कि किस बेसिस पे हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, राइट? So our discussion of different principles of justice has indicated that government might sometimes find it difficult to harmonize the three principles of justice which have been discussed. अब देखो क्या क्या आप लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है। आप लोगों ने जो डिस्कस कर ली, जो थ्री प्रिंसिपल्स की, आप लोगों को इक्वालिटी के साथ ट्रीट करोगे, राइट? आप प्रोपोर्शनल जस्टिस करोगे, और फिर आपने बोला कि स्पेशल नीड्स, राइट? लेकिन कुछ क्या हो सकती है, कुछ डिफिकल्टीज हो सकती हैं। Always it's not easy to treat people in all these three manners जो अभी डिस्कस हुए हैं। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, कि जो इक्वल्स हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करो। रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल डिफरेंट एफर्ट्स एंड स्किल्स, आपने क्या पढ़ा था कि आप लोगों की उस टास्क को आइडेंटिफाई करोगे कि उस टास्क को करने में कितना डेंजर है। उसके बाद आप लोगों को रिवॉर्ड से कहीं ना कहीं आप उनको रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाओगे, पनिशमेंट प्रोवाइड करवाओगे, right? While determining reward and burdens, and provision of minimum standard of living and equal opportunity to the needy. और कैसे आप डिसाइड करोगे कि कितने मिनिमम स्टैंडर्ड होने चाहिए जो एटलीस्ट आप इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों को देना चाह रहे हो, नीडी पीपल को देना चाह रहे हो। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे कैन बी कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, क्योंकि जब आप इक्वालिटी के साथ लोगों के साथ जस्टिस करोगे, राइट, तो कहीं ना कहीं आप ये जो स्पेशल नीड्स वाला कंसेप्ट है ये कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। सो इट्स नॉट ऑलवेज इजी टू हेल्प द पीपल अलोंग विद दिस थ्री प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। परसुइंग इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बाय इटसेल्फ माइट समटाइम्स वर्क अगेंस्ट गिविंग ड्यू रिवार्ड्स टू मेरिट। और कई बार क्या हो सकता है कि जब आप इक्वालिटी के साथ ट्रीटमेंट करते हो, ये कई बार क्या होता है, माइट समटाइम्स वर्क अगेंस्ट, कि जब आप लोगों को मैरिज के बेस पे रिवॉर्ड करोगे तो ये इक्वालिटी के अगेंस्ट में अपने आप ही कहीं ना कहीं हो जाता है ना? क्योंकि आपने कुछ एक मैरिट बेस्ड लोगों को सेलेक्ट कर लिया, उन लोगों को स्क्रूटनाइज कर लिया, तो ये कई बार उसके अगेंस्ट में भी हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? ऑल ऑफ द थिंग्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर आपने मैरिट बेस पे सेलेक्ट कर लिया तो इट मींस आपने सिर्फ मैरिटोरियस लोगों को सेलेक्ट किया है, तो इट मींस आपने स्पेशल नीड्स वाले लोगों को छोड़ दिया। जब आप स्पेशल नीड्स के साथ किन्हीं लोगों को ट्रीट करते हो तो फिर इक्वालिटी कहीं ना कहीं हैम्पर होना शुरू हो जाती है, राइट? Emphasizing rewarding merit as the main principle of justice might mean that marginalized section would be at a disadvantage in many areas because they have not had access to facilities such as good nourishment or education. और ऐसे में फिर प्रॉब्लम क्या होती है? ऐसे में प्रॉब्लम फिर ये हो जाती है, इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही हो जाती है कि जो हमारी सोसाइटी का वो सेक्शन है जो मार्जिनलाइज्ड है। मार्जिनलाइज्ड मतलब जो डेवलपमेंट की बिल्कुल लास्ट लेडर पे जो स्टैंड करने वाली कम्युनिटी होती है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हमेशा टॉलरेट करनी पड़ती है,
because they are not having access to good education, good facilities, and that's why they are standing at the last only. तो हमेशा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. Different groups in the country might favor different policies depending upon which principle of justice they emphasize. और इसीलिए हर एक कंट्री में आपको अलग अलग ग्रुप्स मिल जाएंगे. एज आई टोल्ड यू, कुछ लोग इक्वालिटी अमंग इक्वल्स को भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ लोग उस रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स वाले पार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, इट्स नॉट करेक्ट. कुछ लोग बोलेंगे कि इक्वालिटी का कंसेप्ट ही गलत है क्योंकि कुछ लोग तो ऑलरेडी अनइक्वल होते हैं, दे आर नेचुरली अनइक्वल. तो इट मींस वी विल बी एबल टू फाइंड डिफरेंट ग्रुप्स इन आवर कंट्री ओनली, राइट, इन एवरी कंट्री, जो जस्टिस, जो अपने अकॉर्डिंग जस्टिस को कहीं ना कहीं इंश्योर करते हैं और अपने अकॉर्डिंग जस्टिस को एक्सप्लेन करते हैं. It then becomes a function of government to harmonize the different principles to promote a just society. ऐसे में लोग तो अपने अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे. सपोज कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो व्हाट दैट पर्सन विल बी सेइंग कि नहीं, रिजर्वेशन शुड नॉट बी देयर, क्योंकि ऐसे में हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स छूट जाते हैं और जो एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी के बच्चे हैं, दे आर गेटिंग एजुकेशन फैसिलिटी ऑल्सो एंड दे आर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो, राइट. उनको लेस मार्क्स पे चीजें मिल जाती हैं. लेकिन एक एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी का बच्चा क्या बोलेगा कि नहीं, रिजर्वेशन होनी चाहिए क्योंकि हमें कुछ स्पेशल नीड्स की अभी भी रिक्वायरमेंट है. दैट्स व्हाई इट शुड बी देयर, राइट. सो एवरी पर्सन कहीं ना कहीं फिर क्या ट्राई करेगा, दैट जस्टिस शुड बी मोल्डेड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, and every group will try to do the same only. In every country we will be finding these kind of examples. So now whose work will be starting? Now the role of government will start. और यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे गवर्नमेंट का टास्क होगा उन डिफरेंट जो लोग हैं उनके बीच में हार्मनी एस्टैब्लिश करना, इक्वालिटी की फीलिंग एस्टैब्लिश करना और एक ऐसा स्ट्रक्चर सोसाइटी का डेवलप करना, ऐसी फंक्शन एस्टैब्लिश करना ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी भी प्रमोट हो, जस्टिस भी प्रमोट हो एंड द सोसाइटी कैन बी जस्ट, राइट. So here is the biggest responsibility that who is having, that the state and government. I hope now the recognition of the special needs topic is completely clear to all of you. But if you are having any kind of doubts and queries, you can ask your doubts in comment section. We will meet in next video with the next part, that is just distribution. If you are able to understand recognition of special needs, please press the like button and subscribe the channel. We'll meet in next video. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.